Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In Statistics Technique channel, today you will learn harmonic and arithmetic mean for the reciprocals of the observations or of the x. You know that in statistics, x is used for the number of observations or number of variables in a data set. So, uh, let's start. Basically, we know that arithmetic mean and harmonic mean are related terms, and you know that arithmetic mean is simply the sum of values divided by number of values, and harmonic mean, that is the reciprocal of arithmetic mean and the reciprocal of then the observations. So these two terms are interrelated with each other, but sometimes students get confused when reciprocal of observations are given, and it is mentioned that find the arithmetic mean and harmonic mean from the reciprocals of the data. So it's very simple to differentiate between these two averages. You just have to clarify your concept, your logic about arithmetic mean and harmonic mean. So let's start in this video. Okay, as you know that in the videos of harmonic mean, I have told you what is the meaning of reciprocal, that is to invert any observations, right? If I have x observation, then 1 over x will be its reciprocal. Okay, and I have also mentioned what is the formula for arithmetic mean and harmonic mean. So if there are some observations and it is mentioned that these are the reciprocals and you have to find the arithmetic mean and harmonic mean, suppose we take any data set here. So students, you can see that I have taken a data set here, and this data set is, these are not the simply x observations. It is mentioned that reciprocal of x means these observations are reciprocal of x observations, and from these reciprocal observations we have to find the arithmetic mean and the harmonic mean. So it means कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये ऑब्जर्वेशंस हमारे पास एक्स नहीं है, बल्कि ये ऑब्जर्वेशन जो हैं ये क्या है, ये 1/x है। ये क्यों 1/x है? क्योंकि इनके लिए वर्ड क्या यूज़ किया गया है, रेसिप्रोकल का। ठीक है, तो हम जब इसको जो है वो ऑब्जर्वेशंस को अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे, तो इट मीन्स कि हम इस डेटा के ऊपर एक्स की हेडिंग नहीं देंगे, बल्कि 1/x की हेडिंग देंगे। जैसा कि मैं अभी आपको यहाँ पे इंसर्ट करके बताती हूँ. So students, you can see that I have inserted these reciprocal values into the table, and you can see that I have named this column as 1/x. ठीक है, पहले तो हम इस की सिंपल ऑब्जर्वेशन जैसे कि अरिथमेटिक मीन या हमने कोई पीछे जो है वो एवरेज कैलकुलेट किया, तो जो डेटा गिवन होता था वो उसको जो है वो एज अ एक्स ऑब्जर्वेशन हम मेंशन करते थे, लेकिन इसका नेम मैं 1/x रख रही हूँ. क्यों 1/x रख रही हूँ? बिकॉज कि हमारे पास जो है ये डेटा रेसिप्रोकल की फॉर्म में गिवन है. क्लियर? नाउ लेट्स सी, अब आगे हमें क्या करना होगा. ओके, अब कैलकुलेशन के लिए हमें जो है वो, मैं अगेन थोड़ा सा कैम जो है वो रोटेट कर रही हूँ. कैलकुलेशन के लिए हमें क्या कहा गया है कि आपने फाइंड क्या करना है, अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. ठीक है, इस डेटा सेट के ऊपर. तो अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें जो है वो रेसिप्रोकल्स गिवन है, तो रेसिप्रोकल्स के ऊपर जो एवरेज सूटेबल है, जो एवरेज फाइंड हो सकती है, वो हार्मोनिक मीन होती है, क्योंकि जो आपके पास अरिथमेटिक मीन है वो ऑब्जर्वेशंस के ऊपर फाइंड होगी, और जो हार्मोनिक मीन है वो रेसिप्रोकल्स के ऊपर जो है वो फाइंड आउट होगी. तो इसमें आप देखिएगा कि अब हम करेंगे क्या, हम हार्मोनिक मीन का फार्मूला यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू एन. आई विल राइट द फार्मूला फॉर द अनग्रुप डेटा, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशंस
की ही बात हो रही है, सम ओवर 1/x. So what I have to do, I will simply sum सम दी वैल्यूज, विच वैल्यूज, जो रेसिप्रोकल्स गिवन हैं, ठीक है, इनकी हम सम करेंगे। यानी कि पहले तो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में क्या होता था, एक्स होता था, फिर उनकी रेसिप्रोकल आप निकालते थे, देन उसकी आप सम कर देते। लेकिन ये ऑलरेडी आपके पास रेसिप्रोकल्स गिवन है एंड यू जस्ट हैव टू सम दीज वैल्यूज, और हम इसको सम कर लेते हैं। Now students, we will simply sum these values and after summing these values, इसकी जो सम का आंसर है इन सारे रेसिप्रोकल्स को जमा करने के बाद वो आएगा 0.138 ठीक है। ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। अब इस सम को यूटिलाइज करके हम अपनी हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर देते हैं, जिसमें अब कोई प्रॉब्लम रह नहीं जाती कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू n means how many observations, there are 7 observations, so 7 divided by sum of 1 over x, इस कॉलम की जो सम आई है वो आई है हमारे पास 0.138 and 5, and if I take the ratio of these two terms, so I will get harmonic mean as the 50.51, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास इस डेटा सेट की हार्मोनिक मीन। नाउ लेट्स सी हाउ यू कैन कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। Now students, you know that for the formula of arithmetic mean is that sum of observation divided by the number of observations. So it means we just need the simple x observation, not of its reciprocal. So how you can calculate the simple x observations from the reciprocals of the observations? तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस 1/x को 1 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास x आ जाएगा, ठीक है। उसका मैं आपको एक दफ़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी बता देती हूँ कि लाइक अगर हमारे पास ये 1/x ऑब्जर्वेशन है और हमने इसको x के अंदर चेंज करना है, तो आई विल डिवाइड 1/x बाय दी 1। जब हम 1 डिवाइड बाय 1/x, ठीक है, जब हम इसको करेंगे तो आप देख लें कि ये 1, आपको पता है कि डिवीजन साइन जो है वो फ्रैक्शन टर्म के अंदर आ जाए तो हमें उसकी इस साइन को हम मल्टीप्लाई के अंदर चेंज कर देते हैं और इस साइन को उल्टा देते हैं, तो या इसकी रेसिप्रोकल यानी कि ले लेते हैं। तो डिवीजन को हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई के अंदर, और 1/x को जब उल्टाएंगे तो आपके पास बन गया x/1, ठीक है, या फिर सिंपल x। तो ये 1 से कट के तो बाकी क्या रह गया x। तो इट मीन्स कि हमें इन रेसिप्रोकल्स को x में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक दफ़ा फिर इन हर ऑब्जर्वेशन को x 1 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, और जब वो आ जाएगा तो फिर हम सिंपल जो है वो सम लेके अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट आई हैव कंप्लीटेड द कॉलम ऑफ द x, और मैंने कैसे इस कॉलम को लिया मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि मैंने हर ऑब्जर्वेशन को 1 के साथ डिवाइड किया। लाइक आपने अपने कैलकुलेटर से लिखना है, यहाँ पे मैं लिख के बता रही हूँ कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी 0.026, तो आप लिखेंगे 1 और डिवाइड का साइन बटन प्रेस करने के बाद आप डालेंगे 0.0267, ठीक है, तो आपके पास ये ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। इसी तरह 1 डिवाइड बाई 0.0235 लिखेंगे, यू विल गेट 42। 1 डिवाइड बाई 0.0211 लिखेंगे, यू विल गेट 47.39, एंड सो ऑन you can complete this column. After completing these columns, now you can see these are the x observations, ठीक है, और अब ये x observations आ गई हैं। now you can calculate arithmetic mean by adding up all these values and divide by the number of values. so मैं यहाँ पे इसकी जो है वो समीशन लिख रही हूँ। इसकी समीशन हमारे पास क्या आ जाएगी, 367.2 एंड 9, ठीक है। तो ये इसकी हमारे पास जो है वो समीशन आ गई है। अब आपने करना क्या है कि मैं अगेन यहाँ पे अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिख रही हूँ। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। so you will write 367.29 divided by how many observation we have,
we have 7, ठीक है. And if you will divide these two terms, you will get the arithmetic mean as the 52.47, ठीक है. सो ये एक जो है वो वे था हमारे पास के रेसिप्रोकल्स के साथ आपको कैसे डील करना होता है, ठीक है. इट्स नॉट अ बिग फिलॉसफी, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और द लॉजिक ऑफ एनीथिंग. So, for the better understanding of these statistical concepts, must watch my video. And thank you so much for liking my channel and watching my videos. Take care of yourself and Allah Hafiz.